Hello, good morning everyone. I hope you all are well and we energetic. So today we start next topics of chapter 3 current electricity. Application of potentiometer. Find the internal resistance of the cell Lagrange cell with the help of potentiometer. पोटेंशियोमीटर की हेल्प से गिवन लैग्रांजी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. हियर टू सर्किट्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट प्राइमरी सर्किट, सेकेंड सेकेंडरी सर्किट. इन प्राइमरी सर्किट lead accumulator cell EP, key K and rheostat RH connect in series with potentiometer wire AB. Primary circuit is common. In secondary circuit, cell E to which found the internal resistance are connected with resistance box RV and key K2 in series. Again, positive terminal of cell connected to potentiometer point A and negative terminal connected to jockey with the help of galvanometer. यानी स्ट्रक्चर में हमने ये सर्किट ड्रॉ किया और इस सर्किट की समरी नोट कर दी. अगेन वर्किंग इनिशियली K1 key is on, K2 key is off. With the help of jockey, find the null point J1 and balancing length L1. So, potential gradient X is equals to E upon L1. So, EMF of cell E is equals to XL1 equation first. Now K2 key is also on and take some resistance from RV. यानी हमने K2 की को भी ऑन किया और सम रेजिस्टेंस यहां से लिया R from RV. So potential difference between XY V is equals to IR or flowing current I is equals to V upon R. Equation 2. Again, by using jockey and find out null point J2 and balancing length L2. So potential gradient X is equals to potential difference V divided by balancing length L2. So potential difference V is equals to XL2 equation third. We know that EMF of cell E is equals to I R plus small r. Here I flowing current, R take resistance from RV and small r internal resistance of the given cell. So E is equals to IR plus I small r. We know that
IR is equals to V. So E is equals to V plus IR. E minus V is equals to IR. So internal resistance of the cell small r is equals to E minus V upon I. From equation second, I is equals to V upon R. Then internal resistance small r is equals to E minus V upon, put the value of I, V upon R. यहां पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल फाइंड आउट हुआ, लेकिन इन द टर्म ऑफ ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड टेक रेजिस्टेंस फ्रॉम आरवी. पुट द values of EMF E and potential difference V from equations first and third. फर्स्ट इक्वेशन में EMF की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की, वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे. देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सेल स्मॉल r इज इक्वल टू E की वैल्यू है XL1 माइनस V की वैल्यू XL2 डिवाइडेड बाई XL2 और R. सो स्मॉल r इज इक्वल टू X कॉमन लिया, L1 माइनस L2 अपॉन XL2 इंटू R, या X से X कैंसिल. So internal resistance of the given cell L1 minus L2 upon L2 into R. Its unit is ohm. On experimental L1 L2 find out करेंगे. R यहां पर जो हम यूज करेंगे वो वैल्यू होगी, और L1 L2 और R की वैल्यू पुट करते ही हमें उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर. क्वेश्चन नंबर 1. EMF of a cell is balanced by a length 4 meter on a potentiometer wire. When the a shunt resistance यानी small resistance of 5 ohm is added to the cell, the balancing length is reduced by 1 meter. यानी पहले बैलेंसिंग लेंथ 4 मीटर थी, रिड्यूस बाई 1 मीटर यानी 3 मीटर. 4 माइनस 1. फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. सबसे पहले जब हमने सेकेंडरी की जो है सेकेंडरी सर्किट की जब ऑफ रखी, उस समय गिवन है कि बैलेंसिंग लेंथ L1 4 मीटर है. अब जब हमने 5 ओम का शंट रेजिस्टेंस यूज किया फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, देन बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू रिड्यूस बाई 1 यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 मीटर. और इस समय जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है. अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. We know that internal resistance of the cell small r is equal to L1 minus L2 upon L2 into R. Put these value. So internal resistance of cell small r is equal to L1 4 minus L2 3 upon 3 or into R 5 ohm. So small r is equal to 4 minus 3
1/3 into 5. So internal resistance of the cell small r is equals to 5/3. So small r is equals to 3 1 जा 3, carry 2, 3 6 जा 18, 2, तो 3 6 जा 18, 2 फिर 20, तो 3 6 3 7 जा 21. ये जो हमारा सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट हुआ 1.67 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. ऑन कनेक्टिंग ए बैटरी इन ए सर्किट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 75 ओम, a current 0.7 एम्पियर फ्लो इन द सर्किट. यानी जब हम जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 75 ओम यूज करते हैं तब सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसका मैग्नीट्यूड गिवन है 0.7 एम्पियर. इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड टू 115 ओम, हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया to 115 ohm, the current drop 0.5 एम्पियर. उस समय करंट का जो मैग्नीट्यूड है 0.5 एम्पियर. कैलकुलेट द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. तो एक तो हमें बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट कंडीशन हमें कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल है वो 75 ओम है और उस समय करंट का जो मैग्नीट्यूड है I1 वो 0.7 एम्पियर है. इन सेकेंड कंडीशन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू 115 ओम एंड फ्लोइंग करंट I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर. We know that EMF of the cell E is equal to I external resistance plus internal resistance. For first case, E is equal to current I1 when external resistance R1. तो E is equal to I1 की वैल्यू है 0.7, R1 75 प्लस स्मॉल r इक्वेशन फर्स्ट. फॉर सेकेंड केस यानी E is equal to अब करंट I2 when external resistance R2, so EMF of the battery E is equal to I2 यानी 0.5 ब्रैकेट 115 ओम प्लस स्मॉल r. मैंने दोनों केस यूज करके सेल का EMF फाइंड आउट कर लिया. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमने यहां पर देखा कि LHS सेम है, सो RHS इज ऑल्सो सेम. सो 0.7 ब्रैकेट 75 प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 ब्रैकेट 115 प्लस स्मॉल r. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का मल्टीपल 75, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 तो 52 और यहां पर 1 के बाद पॉइंट प्लस 0.7 स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5 का 115, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 बन जा 5 और 2 7 और 5 बन जा 5 और पॉइंट प्लस 0.5 स्मॉल r. 0.5 स्मॉल r इधर लाएंगे तो 0.7 r माइनस 0.5 r इज इक्वल टू 57. 0.5 माइनस 52.5 तो 0.2 इज इक्वल टू 5
0.2 R is equals to 5. So R is equals to 5 upon 0.2. तो R is equals to 50/2. तो हमारा जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो गया 25 ओम। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर दें। फ्रॉम पुट द वैल्यू of small r in equation second. So E is equals to 0.5 115 plus small r यानी 25. तो E is equals to 0.5 into 5 5 10 carry 1 4 1. तो E is equals to 5 0 5 4 जा 20 2 5 1 जा 5 और 2 7 यानी हमारा जो EMF है वो 70 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 25 ओम। क्वेश्चन नंबर 3, करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज 2 एम्पियर. Resistance of the per meter wire is rho is equals to 0.2 ohm per meter. When 1 ampere current passed through the coil, potential difference across its terminals is balanced by 2.5 meter length of the wire. Calculate the resistance of the coil. हमें कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। यहां पर करंट जो है वो 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर रो इज इक्वल टू 0.2 ओम पर मीटर गिवन है। वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स इज इक्वल टू E upon L. Again we know that according to Ohm's law E is equals to IR. So X is equals to I R upon L. Here R upon L is equals to rho. So X is equals to I rho. अब I की वैल्यू है 2 और rho की वैल्यू है 0.2. तो हमारा जो X है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट X is equals to 0.4 वोल्ट पर मीटर। अब मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस R is equals to V upon I. अब I की वैल्यू तो है 1 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to X और जो हमारी लेंथ है तो वो है 2.5 मीटर XL. Here L is equals to 2.5 मीटर. So potential difference V is equals to XA 0.4 into length 2.5. तो potential difference V is equals to 1 volt. अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I डैश. तो I सिंबल हम पहले यूज कर चुके हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल R इज इक्वल टू V की वैल्यू 1 और करंट की वैल्यू V1. तो हमारा जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम यानी कॉइल का रेजिस्टेंस 1 ओम फाइंड आउट हुआ। Next question 4. A battery of constant EMF and negligible internal resistance is connected in series with 10 meter long wire of potentiometer. एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की लेंथ 10 मीटर है। Balanced point for a standard cell is obtained at length
4.5 मीटर, यानी उस समय जो बैलेंस्ड लेंथ है, यानी बैलेंसिंग लेंथ वो 4.5 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 1 मीटर इंक्रीज कर दी, यानी 10 + 1 11 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल इज हाफ, यानी उसकी वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दी, यानी लेंथ इंक्रीज हुई, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गई, इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो गया। When will be the balancing length? उस समय हमें जो है वो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जो प्राइमरी बात है वो लेंथ है हमारी 10 मीटर। तो जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है x इज इक्वल टू ई अपॉन लेंथ हमारी है 10, और यहां पर कह रहे हैं कांस्टेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो ई तो कांस्टेंट रहेगा, यानी x1 इज इक्वल टू ई अपॉन 10। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू x1 L1। अब L1 हमारा जो है वो है 4.5 मीटर, तो यहां लिख दिया मैंने L1 इज इक्वल टू 4.5 मीटर। सो V इज इक्वल टू E अपॉन 10 इंटू 4.5, इक्वेशन फर्स्ट। अब इन सेकेंड केस लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड क्रॉस सेक्शनल इज हाफ, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट x2 इज इक्वल टू E अपॉन 11, यानी लेंथ हमारी 1 मीटर इंक्रीज हो गई, 10 + 1 11। अब सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू x2 L2। अब न्यू लेंथ हमारी क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो V इज इक्वल टू x2 यानी E अपॉन 11 इंटू L2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हमने दोनों इक्वेशन में देखा LHS सेम है तो RHS इज ऑल्सो सेम, तो E अपॉन 10 इंटू 4.5 इज इक्वल टू E अपॉन 11 इंटू L2। E से E कैंसिल हुए, अब 10 का मल्टीपल L2 यानी 10 इंटू L2 इज इक्वल टू 11 इंटू 4.5, सो L2 इज इक्वल टू 11 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 10, तो देन L2 न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू 11 का यहां मल्टीपल करेंगे तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 4 जा 44 और 5 49, और ये पॉइंट हो गया अपॉन 10, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 इज इक्वल टू 4.95 मीटर। थैंक्स।